Hello dear students, hope you are all right. So dear children, from today we are going to start here with the first chapter from the book Vistas, and the name of this chapter is the third level. So children, first of all you will have to understand the title of this story. Here this particular story has been titled as the third level. So this third level refers to the third floor. Level means floor. So what kind of a third floor it is and where is this third floor situated, that you would come to know as we proceed on with this story. But this story is really going to be quite complicated and mysterious. This is a kind of science fiction that you will really have to pay attention to understand the things better. So just let us start with it. And this particular story has been composed by Jack Finney. So the third level, as I have already told you, refers to the third floor of a building. So what that building is, let us see. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? So this is the introductory question that has been put up here by the writer. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? So sometimes you definitely have some curious experiences which generally the others do not find easy to believe. Sometimes we do have such experiences. Sometimes we do have such strange experiences, such curious experiences which are difficult for others to believe. कि कई बार जो है हमें इस तरीके के ऐसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, ऐसे अनोखे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि अगर उनको हम दूसरों के साथ में शेयर करें तो शायद वो इतनी आसानी से बिलीव ना कर पाए. तो इस चैप्टर के नैरेटर के साथ में भी एक ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ, और वो एक्सपीरियंस क्या था कि द नैरेटर इज समहाउ एबल टू रीच द थर्ड फ्लोर ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क. द ग्रैंड सेंट्रल इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क. New York is a very big city and it has got so many railway stations like all other big cities. If you consider the case of Lucknow, even Lucknow has got 3 or 4 railway stations. There is one railway station in Gomti Nagar that is under construction. If you consider the case of Mumbai, Mumbai has got 15s of railway stations as such. Victoria station, which is presently known as CST Chhatrapati Shivaji station, then Churchgate railway station, then Bandra, then Andheri. In every particular locality there is a railway station in Mumbai. So Mumbai is also a big city like New York. So all these big cities have got so many railway stations, and in the same way in New York also there are more than one railway station. So this particular story is going to have in its background the Grand Central Railway Station of New York. इस particular story के background में आप Grand Central Station न्यूयॉर्क को पाएंगे. तो ये जो Grand Central Station न्यूयॉर्क है, इसके बारे में सबको ये पता है, और जहां तक इसका लेआउट प्लान है, जहां तक इसका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल लेआउट प्लान है, उसमें भी ये बताया गया है कि इस रेलवे स्टेशन पे 2 फ्लोर हैं, इस रेलवे स्टेशन पे 2 लेवल्स हैं. लेकिन राइटर कहता है कि दैट ही हैज गॉट अ चांस टू विजिट द थर्ड फ्लोर और द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. सो दैट इज रियली समथिंग मिस्टीरियस. एंड व्हेन ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंस विद समबडी, definitely people are not ready to accept this information. Definitely people are not ready to accept this experience of the writer, because the writer says that he has been on the third level of the Grand Central Station, but everybody says that there are only 2 levels at the Grand Central Station. So this is really a very strange experience. तो ये क्या है? तो इसी सिलसिले में यहाँ पे लिखा हुआ है कि have you ever had any experience as such which others find hard to believe? So definitely sometimes in your life you are going to have such experiences, like the experiences in relation to the supernatural elements or the ghostly experiences, or these kind of experiences as such are really difficult for others to believe कि ये जो सुपरनेचुरल लाइफ्स होती हैं इनके बारे में. लेकिन फिर भी बहुत सारे भूत प्रेत झाड़ने वाली जगहों पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें रियलिटी होती है. तो वही इसके इंट्रोडक्शन में ये बात आपसे कही गई कि क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? तो कुछ लोगों को हुआ भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी हुआ होगा. तो एनीवे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल स्टोरी. काइंडली पे अटेंशन. So what you have been told here, children, in the beginning is the presidents of the New York Central, the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. So children, here in the first paragraph you have been given the names of various railway stations that are there in New York City. In New York City there are so many railway stations. The first one is the New York Central Railway Station. Another railway station is the New York Railway Station. Then another railway station in New York City is New Haven Railway Station, and yet another railway station in New York City is Hartford Railroads. And what you have been told here, that the president of
the New York Central, New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. So the presidents of all these railway stations, president is somewhat like the station master as we have in our country. In our country we have station masters at these stations. So here it has been written as the president. So the president of all these railway stations are ready to swear, they are ready to take oath on a stack of timetable, on a bundle of timetable, that there are only two, that there are only two floors at the New York railway station, that there are only two floors at the New York Grand Central railway station. New York Grand Central railway station is the actual name of the railway station. कि उस पे केवल दो फ्लोर हैं. इस बात के लिए जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जितने भी स्टेशन मास्टर्स हैं, वो रेलवे टाइम टेबल पे हाथ रख करके और कसम खाने को तैयार है कि मम्मी की कसम यहाँ पे केवल दो ही फ्लोर है. लेकिन राइटर कह रहा है कि नहीं, देयर आर थ्री फ्लोर्स. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. So the writer claims that there are three floors at the Grand Central Station, and he also says that he has been on the Grand Central Station's third floor somehow. So how is it possible? That we proceed on and we would see. So let us proceed further. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. So here the writer is telling you that he took the obvious step, that after having this kind of a strange experience, this was really a very strange experience for the writer. So after having this kind of an strange experience, the writer consulted his psychiatrist friend. The writer tried to consult his psychiatrist friend among others. That he consulted many other people also, but he also took the consultation of his psychiatrist friend. कि राइटर ने ऑब्वियस स्टेप लिया. राइटर ने इस स्ट्रेंज एक्सपीरियंस को पाने के बाद एक एपरेंट स्टेप लिया, एक बड़ा कॉमन सा स्टेप लिया. और वो क्या था कि उसने कई लोगों से ये बताया कि यार मैं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया, पता नहीं कैसे. और साथ ही साथ उसने अपने साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो दिमाग वगैरह में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उससे डील करते हैं, तो जो जिनको हम मनोचिकित्सक वगैरह बोलते हैं, तो उसने अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात की. तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि he took the obvious step and he consulted a psychiatrist friend of his among others. I told him about the third level at Grand Central Station. So he shared his experience of having a visit to the third level of Grand Central Station. He told him that he just had a chance visit that he just had a chance visit to the Grand Central Station's third level. And this is something that everybody else is finding hard to believe. उसने अपने दोस्त को बताया, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताया कि यार मेरी तो जो है वो एक चांस विजिट हो गई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पे, और मैं जिससे इससे बताता हूं तो कोई इसको मानने को ही नहीं तैयार होता है. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said that it was a waking dream wish fulfillment. So that was the comment of the psychiatrist. The psychiatrist said that it was nothing but a waking dream wish fulfillment. Waking dream wish fulfillment means to have a waking dream, कि जागते हुए सपना देखना और जागते हुए उस सपने को पूरा भी कर लेना. कि पहली बात तो आप जागते जागते बैठे बैठे आप सपना देखिए कि ऐश्वर्या राय से आपकी शादी हो गई है, और उसको जो है आप जाकर के माला वाला पहन करके वहां से चले आइए, उसके बाद जाकर के घर वालों का पैर छुइए कि हमने शादी कर ली है, पूछे किससे, तो बताइए कि ऐश्वर्या राय से. तो फिर तो ये है कि मतलब एक वेकिंग ड्रीम देखना और वेकिंग ड्रीम देखने के साथ साथ उसको फुलफिल भी कर लेना, तो वो चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है. कैन यू पे अटेंशन. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said that it was a waking dream wish fulfillment. So he also mocked at the writer. उसने भी राइटर का मजाक उड़ाया, उसने भी राइटर का मजा लिया कि ये देखो थर्ड लेवल जो है ही नहीं वहां पहुंच गए. उसने कहा कि दिस इज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि ये तो जो है वो दिन में सपने देखने जैसा है, और सपने देखना ही नहीं बल्कि सपने को पूरा भी कर लेना. कि तुम जो है एक सपना देख रहे हो, तुमने सपने को पूरा भी कर लिया है जागती आंखों से. तो उसने भी राइटर का मजाक उड़ाया, उसने भी राइटर का मजा ले लिया. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. So he said that the writer was unhappy. He said that the writer was full of anxiety. He was full of some kind of mental tension. He was full of some kind of fear and all these things. And this is the reason on account of which he in his imagination just walked over into the third level. कि उसने कहा कि तुम थोड़ा परेशान हो, तुम दिमागी तौर पे परेशान हो, इस वजह से तुमको ऐसी इस तरीके के तुमको हेलुसिनेशंस हो जा रहे हैं कि तुम थर्ड लेवल पे हो, जबकि तुम यहीं पे हो फर्स्ट और सेकंड लेवल पे, तुम और कहीं नहीं हो, लेकिन तुमको इस तरीके के हेलुसिनेशंस हो जाते हैं क्योंकि तुम दिमागी तौर पे फिट नहीं हो. तो व्हेन द साइकियाट्रिस्ट सेड दैट काइंड ऑफ अ थिंग, डेफिनेटली दिस मेड हिज वाइफ मैड. कि जब साइकियाट्रिस्ट ने इस तरीके की बात बताई कि हाँ तुम दिमागी तौर पे ठीक नहीं हो, कि अब जैसे मान लीजिए कि किसी के
हस्बैंड के बारे में किसी को, जैसे जो है वो गोल्डी को बता दिया जाए कि जो है वो गुरप्रीत जो है वो मेंटली फिट नहीं है, तो फिर पता चलेगा कि गोल्डी परेशान हो जाएगी। तो इसी तरीके से कोई भी परेशान हो सकता है। तो वो बता रहा है कि जब साइकियाट्रिस्ट ने ये बात कही तो डेफिनेटली हिज वाइफ वाज रियली मैड, डेफिनेटली हिज वाइफ वाज क्वाइट वरीड कि जब उसने ये कहा कि तुम दिमागी तौर पे फिट नहीं हो, इसलिए तुम इस तरीके के हेलुसिनेशंस तुमको हो रहे हैं, तो उसकी वाइफ बहुत परेशान हो गई। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest, and that I just wanted to escape. So this is the explanation that had been given by the psychiatrist. The psychiatrist told the writer that this world is really full of fear, the world is full of worry, the world is full of misery, the world is full of war, the world is full of all these kind of situations of struggle, and just having been troubled by the situations of the world, the writer had walked over into the third level in his imagination, or he just simply had that kind of an hallucination. He just simply had that kind of a hallucination, and he just walked into the थर्ड लेवल। तो उसने कहा कि तुमको इस तरीके का हेल्यूसिनेशन हो गया क्योंकि ये दुनिया इतनी परेशानियों से भरी हुई है और तुम इन परेशानियों से एस्केप करना चाहते थे, तो यही एस्केप करने में तुम जो है अपने ख्यालों में खो गए और तुम थर्ड लेवल पे पहुंच जाने जैसा तुमने फील किया कि जैसे आप बहुत परेशान हैं दिमागी तौर पे, तो थोड़ी देर पे के लिए आपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए जो है वो कोई मूवी लगा ली और आपने मूवी देखा, तो उतनी देर आपका दिमाग डाइवर्टेड है और आपके दिमाग में परेशानियां नहीं है। तो उसने कहा कि जो साइकियाट्रिस्ट था उसने ये बताया, इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि द प्रॉब्लम इज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी एंड वरीज एंड ट्रबल्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड द राइटर वांटेड टू हैव एन एस्केप फ्रॉम देम, कि राइटर इन चीजों से बच निकलना चाहता था, इसलिए वो बस अपनी इमेजिनेशन में वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया। ये एक्सप्लेनेशन उसने दिया। Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape. So here the writer says that this is something very common. Everybody whom he knows wants to escape. Everybody wants to have an escape from the harsh realities of life, and that is why sometimes you start watching TV, sometimes you start playing games, sometimes you start doing this and that. So in this way you are able to give your mind a different kind of outlet, and then you are going to feel a bit refreshed, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप चिंताओं को भूल जाते हैं। तो उसने कहा कि इसमें ऐसी कोई खास बात भी नहीं है, हर कोई दुनिया में जो है वो अपनी डिफिकल्टीज से एस्केप करना चाहता है, बट इट डज नॉट मीन दैट इफ पीपल ट्राई टू एस्केप द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर गोइंग टू वॉन्डर डाउन इनटू द थर्ड लेवल। ऐसा किसी के साथ में नहीं होता है कि हाँ कोई थर्ड लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन पता नहीं उसके साथ में ऐसा कैसे हुआ। तो वो कह रहा है कि जो है उसके साथ में इस तरीके की घटना रियलिटी में घटी है, तो राइटर जो है वो अपने आप में सही है। डेफिनेटली दिस वाज समथिंग दैट हैपेंड विद द राइटर, बट द साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल दीज पीपल वर नॉट रेडी टू बिलीव। या हो सकता है कि साइकियाट्रिस्ट ने उसकी बात पर बिलीव भी किया हो, लेकिन किसी वजह से साइकियाट्रिस्ट ने उसको ये दिखाया नहीं कि तुम्हारी बात सही है, बल्कि उसने ये कहा कि नहीं तुम्हारी बात सही नहीं है। कि जैसे आप जाकर के कहिए कि अभी रास्ते में मैंने भूत देखा और भूत पड़ा हुआ था, तो जनरली हो सकता है लोग इन चीजों को ना माने, लेकिन हाँ कहीं पे ये एक्सपीरियंसेस सही भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर जो है वो कह रहा है कि डेफिनेटली दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, वरी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि आप देखिए तो आपके चारों तरफ इतनी सारी डेथ हो रही है, इतना कोरोना का इफेक्ट है, इतना इस सब तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, दवाई नहीं मिल रही है, रेमेडीज नहीं मिल रही हैं, तो आदमी जो है इतना परेशान है। तो अपनी परेशानी में किसी दूसरे तरफ अगर वो अपना मन लगा ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब दूसरे तरफ अपना मन लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो किसी रेलवे स्टेशन के थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, जो है ही नहीं है एक्चुअली। तो ये बात यहाँ पे नैरेटर को बहुत चिंता में डाल रही है, ये बात नैरेटर को बहुत परेशान कर रही है कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो गया। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। But that is the reason, he said, and my friends all agreed. So ultimately the psychiatrist remained firm in what he had said. The psychiatrist was persisting in what he had said. He said that this is the only reason on account of which you are having such hallucinations. This is the only reason on account of which you are having such hallucinations. That this is only a hallucination. This is not a reality. You must have been somewhere on the first and second level, but you had that kind of hallucination and you thought that you were on the third level. That is the reason, he said, and my friend all agreed. So all his friends agreed upon with the writer. All his friends agreed to the all his friends agreed upon the decision that had been given by the psychiatrist. Everybody agreed टू दी ओपिनियन ऑफ द साइकियाट्रिस्ट, कि उसके सारे फ्रेंड्स जो थे वो साइकियाट्रिस्ट की बात को मान गए कि हाँ डेफिनेटली यही रीजन है कि तुम परेशान रहते हो, यही परेशानी में तुमको ये हेलुसिनेशन हो गया। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। सो दे क्लेम दैट देयर इज अ कंप्लीट रेफरेंस
for this kind of a thing to be happening with you. Everything around you puts a claim to this theory to be true, कि हर चीज इसी तरफ इशारा करती है. There is every possible hint available for this kind of a thing to be true. My stamp collecting, for example, that is a temporary refuse from reality. So his psychiatrist friend and all his other friends said that you have got the habit of collecting stamp, and that is also a temporary refuse. That is also a temporary escape from reality. So stamp collecting, that while you are busy collecting the stamp, you are going to get your mind diverted upon something for time being, and that is how you would be able to escape the reality in some way. तो यही बात राइटर को बताई गई, यही बात राइटर को कही गई कि हर एक चीज जो है इसी तरफ इशारा करती है. जैसे कि तुम्हारा स्टैम्प कलेक्शन, तो स्टैम्प कलेक्शन की जो हैबिट है वो भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज है. रिफ्यूज का मतलब कि टेम्परेरी एस्केप है रियलिटी से. थोड़ी देर के लिए रियलिटी से आप एस्केप कर जाते हैं जब आप किसी और दूसरी चीज में दिमाग लगा लेते हैं. तो चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे गाना सुनना हो, चाहे म्यूजिक सुनना हो, चाहे जो है वो गेम खेलना हो, तो दीज आर ऑल टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. दैट व्हेन यू हैव डाइवर्टेड योर माइंड अपॉन गेम्स और अपॉन लिसनिंग टू म्यूजिक और अपॉन watching TV, definitely you are going to be cut off from the reality for a while. So in this way we are all in the habit of taking temporary refuse from reality, कि हम लोग रियलिटी से रिफ्यूज ले लेते हैं, हम लोग रियलिटी से थोड़ी देर के लिए बच निकलते हैं. हाँ, ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता है जैसा कि यहाँ राइटर के साथ हो गया कि हम किसी दूसरी दुनिया में एक्चुअली पहुंच जाएं. तो उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड्स ने बताया कि हर एक चीज इसी तरफ इशारा करती है. जैसे कि तुम्हारी जो स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट है तो वो भी एक टेम्परेरी एस्केप है रियलिटी से. तो इस तरीके की सारी आदतें जो तुम्हारी हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि तुम रियलिटी से बचने की कोशिश कर रहे थे और तुम थर्ड लेवल का हेलुसिनेशन तुमको हो गया. वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल ड्यूरिंग हिज टाइम. सो हियर द राइटर इज टेलिंग यू that this stamp collection had been started by his grandfather, and in his grandfather everything was really so fine that the grandfather did not have any misery, that the grandfather did not have any worry, and that is why he must not have started his stamp collection in order to make an escape from reality. क्योंकि उनको तो कोई परेशानी ही नहीं थी. वो कह रहा है कि उसके दादाजी के टाइम में स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया गया था और उसके दादाजी के टाइम में तो कोई रियलिटी जो है वो रियलिटी इतनी प्लेजेंट थी कि कोई रियलिटी से भागने की कोशिश ही नहीं करता था. तो स्टैम्प कलेक्शन का ये तो मतलब कतई नहीं है कि स्टैम्प कलेक्शन जो करता है वो रियलिटी से बच करके जाना चाहता है, क्योंकि ये स्टैम्प कलेक्शन तो मेरे दादाजी ने शुरू किया था और मेरे दादाजी के टाइम में चीजें इतनी पीसफुल, इतनी बढ़िया थी कि कोई वजह नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि वो रियलिटी से एस्केप करना चाहते थे. थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल ड्यूरिंग हिज टाइम. तो कोई वजह नहीं है कि हाँ मेरे दादाजी जो है वो रियलिटी से, वास्तविकता से बचने के लिए उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया होगा. फ्रॉम ऑल आई हियर ही स्टार्टेड माय कलेक्शन. सो ही सेज दैट हिज कलेक्शन हैड बीन स्टार्टेड बाय हिज ग्रैंडफादर. और उन्होंने किसी रियलिटी से बचने के लिए इसे नहीं शुरू किया था. इट इज अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4. सो ही सेज दैट दिस स्टैम्प कलेक्शन इज अ नाइस कलेक्शन एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, जिसमें अलग अलग टाइम के अलग अलग तरीके के टिकट्स के, जैसे कुछ जो है वो किसी की मेमोरी में, किसी के मेमोरी को कमेमोरेट करने के लिए निकाले गए, तो कोई टिकट जो है वो वाइल्ड लाइफ पे निकाले गए, तो कोई किसी और चीज पे निकाले गए. तो ऐसे उसके 4 अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिसमें ये टिकट इकट्ठे किए गए हैं. इट इज अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, first day covers and so on. So he has got a copy of almost every US issue. He has got a copy of almost every US ticket, every US डाक टिकट, the first day cover and so on, कि सारी यूएस डाक टिकट, फर्स्ट डे कवर और ये सब उसके पास है. तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है इसको भी समझ लीजिए कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि when a particular stamp has been released on a particular date, what the stamp collectors do, they purchase the ticket and they take a blank envelope and they write their own address on the envelope and they affix the stamp on it and post the letter onto their own address, and then that envelope is going to get the stamp, it is going to get the mohr of that particular day, and that is how the date is going to be certified. इस तरीके से डेट सर्टिफाई हो जाती है. तो इसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं कि ये फर्स्ट डे कवर केवल एक ब्लैंक एनवेलप होता है जिसके अंदर जो है कुछ रखा नहीं जाता है, केवल उसके ऊपर टिकट चिपका करके उसके ऊपर मुहर लगवा दी जाती है और वो अपने ही एड्रेस पे आ जाता है. तो इसको हम फर्स्ट डे कवर बोलते हैं. तो वो कह रहा है कि उसके पास सारे इस तरीके के फर्स्ट डे कवर्स भी हैं. तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, तो अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए राइटर कहता है कि प्रेसिडेंट
Roosevelt had also been collecting stamps, but President Roosevelt was really in such a fine condition that he need not have any escape from reality. उनकी तो रियलिटी ही इतनी अच्छी थी कि उससे बच निकलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी रियलिटी से एस्केप करने के लिए स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तो ये बात आपको बताई गई। फर्स्ट डे कवर में आपको एक बार फिर से बता दूं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर डे पे कोई डाक टिकट रिलीज होता है तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वो उस टिकट को खरीदते हैं और उसी दिन वो एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप लेकर के उस पर वो डाक टिकट चिपका करके उसको वो डिब्बे में डाल देते हैं, जो डाक वाला लाल डिब्बा होता है उसमें डाल देते हैं और फिर वो उसी दिन जो है वो उस पर मुहर लग करके वो उनके एड्रेस पे आ जाता है। तो वो जो मुहर लगती है वो इस बात का सबूत होता है कि इसी डेट पे ये रिलीज हुआ था। तो ये चीज जो है ये फर्स्ट डे कवर होती है कि ब्लैंक एनवेलप जिसके अंदर केवल एक ब्लैंक स्लिप होती है, कोई चिट्ठी नहीं होती है और उसके ऊपर वो डाक टिकट लगा होता है जो उसी दिन रिलीज हुआ होता है और उसके ऊपर जब मुहर लग जाती है तो डेट सर्टिफाई हो जाती है और ये सेल्फ एड्रेस एनवेलप होता है जो कि ये कलेक्टर के अपने ही एड्रेस पे आ जाता है और इसको संभाल करके रख लिया जाता है। तो ये बात आपने यहाँ पे देखी बच्चों। आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अप टू हियर।